वेलकम बैक टू लर्नवर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो पे हम सीसी 8 इंग्लिश ऑनर्स सीयू के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसके बारे में ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सीसी 8 इज ऑल अबाउट इंग्लिश 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। ओके, द टॉपिक्स यू नो, इट्स अबाउट लंदन. In the topic we are having London, Elegy written in a country churchyard, Sir Roger at home and Sir Roger at church. We are also having Robinson Crusoe, and the final topic is the way of the world. So today we are just going to discuss about all about it and कौन से topic के लिए आपको answers prepare करने हैं, because you are not having your exams from 7th August and you know very well. So CC8 में जो पहली topic हम discuss करने वाले हैं London and Elegy written in country churchyard. I'm writing the short form. It's my short form. Elegy written in country churchyard. Okay? तो हमें पता है ये क्वेश्चंस, ये जो पेपर है वो 65 मार्क्स के है, 5 मार्क्स के शॉर्ट है एंड 60 मार्क्स के लॉन्ग है. सो फॉर द फर्स्ट टॉपिक जो नंबर आपका पहला क्वेश्चन आएगा वो है लंदन और एलिजी रिटेड इन कंट्री चर्चयार्ड में और रहेंगे. द क्वेश्चन you are going to prepare or the topics you are going to prepare, I'm just discussing about the topics. Okay, the topics you are going to prepare is all about significance of the title, next theme, contemporary society, and the most important thing is satirical, is it a satire or not, and critical appreciation of the poetry. Same theme, same will goes on theme. The most important is the theme death. So indirectly, मान लीजिए indirectly ये question आया कि discuss the theme of central theme of elegy written in country churchyard, or they ask that critically examine the theme of death. So both the questions are almost same. नेक्स्ट टॉपिक वो आपसे पूछ सकते हैं प्री रोमांटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, रोमांटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए. Because elegy written in country churchyard, or if you take Thomas Gray, he comes between the transition period. The pre-romantic period is a transition period. It comes between a neoclassicism as well as the romantic period. So ये एक transition period है. You will get the touch of a romantic also, and you will also get a touch of a neoclassicism. So that's why we are having a pre-romantic, the period. You can say the beginning of romantics. Okay, it's all about starting on the beginning of romantic, and that's why we are giving it a name of a pre-romantic period. And you have to also prepare about critical appreciation. See, if you prepare an answer critical appreciation, what will basically help you, क्या आपको हेल्प होगी कि ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको टोन, थीम, टाइटल, राइटिंग स्टाइल, हर कुछ आपको बताना होता है. एंड इफ यू प्रिपेयर दिस आंसर बाय योरसेल्फ, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, व्हाट विल हेल्प यू इन फॉर योर एग्जामिनेशन सेक B2, क्योंकि आपके सेक के B2 में भी यही क्वेश्चंस आने वाले हैं कि आपको 20 मार्क्स का क्रिटिकल एप्रिसिएशन दिया जाएगा. सो इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर दिस आंसर्स एंड स्टार्ट फ्रॉम day 1. Okay, day 1 means start from CC8 paper. It will help you very very much. और ये दो क्वेश्चन में और रहने वाले हैं, ठीक है, ये दो क्वेश्चन और रहने वाले हैं, एक लंदन और एक EW एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में. आपको कोई एक के साथ जाना होगा. आई विल सजेस्ट यू गो विथ लंदन, बिकॉज ये बहुत अच्छे सटारिकल पोएट्री है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप दिखा सकते हैं, आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी ऑफ 18th century. You can basically go with this. If you are comfortable with elegy written in country churches, you are very good. I will not say don't write about it. You can practice it, but prepare for London. I basically, I'm also a student, I will also suggest you London in the perspective of a student because I love London, the concept. Okay. So now we are going to our second topic. मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक क्वेश्चन पेपर का फोटो भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मैं आपको अपना जीमेल आईडी और अपना इंस्टाग्राम दे दूंगी. अगर आप इसके आंसर्स को रेडी किए हैं, प्रिपेयर किए, एंड इफ यू नीड अ मेंटर to someone to check your answer, you are writing about the topics whether it is right or not, I will just guide you.
नाउ हमारा सेकंड टॉपिक, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो सर रॉजर एट होम एंड सर रॉजर एट चर्च। ओके, सर रॉजर एट होम एंड सर रॉजर एट चर्च। इसमें क्या है, ये भी आपको पता है, इसमें से दो क्वेश्चन दिए जाएंगे जो उसमें से आपको कोई एक ही करना होगा। ठीक है, इसमें से दो क्वेश्चन क्या दिए जाएंगे आप लोग देखिए। आइडियल फ्यूडल पैट्रनिज्म दिया जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से आप कह सकते हो फ्यूडलिज्म के बारे में आपको दिखाई जाएगी, एज बिकॉज ये आपका जो 18th सेंचुरी है तब फ्यूडलिज्म बहुत जोर शोर से चल रही थी, तो आइडियल फेडरलिज्म के बारे में आपको बतानी होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं, थीम ऑफ द ऐसे, ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, थीम ऑफ द ऐसे। ठीक है, क्या थीम है होम और चर्च का, अलग अलग करके आप प्रिपेयर कीजिएगा, या आप एक ऐसा मास्टर आंसर क्रिएट कीजिएगा जिसमें थीम ऑफ द ऐसे बोलकर टॉपिक लिखे, होम का भी एक लिखिएगा और चर्च का भी लिखिएगा, और आपके माइंड में ये रखिएगा जरूर याद से कि हाँ, ये मैं दोनों को कंबाइन करके ये आंसर लिख रही हूँ। अगर क्वेश्चन एक का भी पूछे तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन जो हमारे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं क्योंकि ये अधिकतर टाइम में ये सीयू का फेवरेट क्वेश्चन है, द राइटिंग स्टाइल ऑफ द नोवेलिस्ट। हमें नोवेलिस्ट के बारे में, हमें राइटर के बारे में, जोसेफ एडिसन के बारे में, उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में हमें जाननी बहुत जरूरी है, बिकॉज ही इज ऑल्सो न्यू क्लासिकल पीरियड्स एंड ही ऑल्सो लाइक to write, or you can say imitate the the classic periods writer. So this is important, the writing style you have to elaborated। और मान लीजिए आप कोई भी आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई भी आंसर यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, यू हैव टू टेल अबाउट द राइटिंग स्टाइल बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट, वेदर यू आस्क यू और नॉट, if you want your answer to get a good marks you should write this writing style। okay, now जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ रॉजर। सर रॉजर जो है, सर रॉजर दी क्लोव, उनके कैरेक्टराइजेशन के बारे में भी आपको बतानी होगी। ठीक है, and the number 5, reflect the contemporary society, reflect contemporary society। okay, आप दो तरह के सोसाइटी डिपिक्ट करेंगे, एक उनके घर के बारे में, एक उनके चर्च के बारे में। so you have to write about home and church, keeping in mind that the answer you are writing is not about only the church or not about only the home, both the answer should be there। मैं फिर भी इससे कह रही हूँ, अगर आप अपना आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं, आप प्लीज अपना आंसर्स को लिख के पीडीएफ फॉर्म में मेरे मेरे जीमेल में भेज दीजिएगा, मैं चेक करके आपको रिप्लाई दे दूंगी, एंड इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई भी आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रॉबिन्सन क्रूसो। इट्स माय फेवरेट टॉपिक, आई रियली अप्रिशिएट एंड आई लव डैनियल डेफॉय, because Daniel Defoe, you can say Jonathan Swift, they are the forerunners or the forefathers of the rise of the novel, and this is the period when the rise of the novel get high। ओके, हम लोग कहते हैं ना हर एक पीरियड की गोल्डन एरा होती है, जैसे आपको पता है पोइट्री के गोल्डन एरा थी रेनेसा, जिस तरह से गोल्डन एरा आप कह सकते हो ड्रामा का भी रेनेसा है, उसी तरह नोवेल का राइज ऑफ नोवेल, 18 सेंचुरी को राइज ऑफ नोवेल कहा जाता था। क्यों 18 सेंचुरी को राइज ऑफ नोवेल कहा जाता है? आई एम जस्ट गिविंग अ लिटिल बिट, यू कैन से समरी और अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, as because after the Puritans they restored the Catholicism, but they don't have the money to go and watch a drama। आप जाइए थिएटर में जाके ड्रामा देखेंगे, उस टाइम में ये इतनी सुविधा नहीं थी, तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपने जर्नल्स के थ्रू, अपने पैम्फलेट्स के थ्रू नोवेल्स लिखे जो फ्रेंडली बजट में भी हो जाती है, पॉकेट बजट की है, लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, एंड दे कैन स्पेंड देयर टाइम, इसीलिए वो नोवेल्स लिखना शुरू किए। एंड डैनियल डेफॉय, जोनाथन स्विफ्ट, दे आर द फोर रनर्स एंड द फोर फादर्स आप कह सकते हैं ऑफ दिस नोवेल्स राइटिंग।
The most important and the most interesting novel I like personally, Robinson Crusoe, Treasure Island. Sorry, Robinson Crusoe. डैनियल डिफॉय की रॉबिन्सन क्रूसो, ये मुझे बहुत पसंद है. नाउ इन रॉबिन्सन क्रूसो की जो टॉपिक्स आती है वो है ट्रैवलॉगी. क्या आपको लगती है ये एक ट्रैवलॉगी है? दूसरा, रॉबिन्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स. आप एक आंसर ऐसा रेडी कीजिएगा जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो एंड उनका सर्वेंट, आप कह सकते हैं सर्वेंट कम फ्रेंड जो थे फ्राइडे, उसके बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके लिए आप प्रिपेयर कीजिएगा वो है उनकी, क्या आपको ये लगती है एक एडवेंचर स्टोरी है, ये एक एडवेंचर नोवेल है? एंड द लास्ट वन यू हैव टू प्रिपेयर मोरल टेल. इसमें से आपको क्या मोरल मिलती है? ये 4 टॉपिक आप रेडी कीजिएगा. इसमें भी क्या है बच्चे लोग, 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपको कोई एक करना होगा. ठीक है, 2 आएंगे, आपको एक करना होगा. मेरा जो टॉपिक हम कहेंगे ये इम्पोर्टेंट है, आप ये रेडी कर लीजिएगा. और एक को कह सकते हैं कि आप एक मास्टर आंसर क्रिएट कीजिएगा जिसमें सब थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख सकते. अगर मान लीजिए आप एग्जाम के टाइम आपको याद नहीं आ रही है, आप छोड़ के क्यों आइएगा, उससे बेहतर है कि आप थोड़ा लिख कर ही आइए. देखिए, 0 से तो अच्छा है ना 1 पाना. सो आई विल सजेस्ट यू टू डू दिस. And you can prepare the writing style at the last if you want. They never ask, but I will suggest you can write about the writing style also. So आज के हमारे जो लास्ट टॉपिक होने वाले हैं वो है द वे ऑफ द. क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिएगा वो है कॉन्टेम्प्रेरी 18 सोसाइटी. कॉन्टेम्प्रेरी 18th सेंचुरी सोसाइटी को आप डेपिक्ट कीजिएगा. सेकेंड जो क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिएगा लेडी वेस्टफोर्ड के बारे में कैरेक्टराइजेशन कह सकते हैं. ये आपको लगता है कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी को कैसे दर्शाती हैं, एन आर्केटाइपल. आप लेडी विस्फोट का एक आंसर रेडी कर सकते हैं. You can prepare an answer on Lady Wisport. रेस्टोरेशन कॉमेडी के बारे में आपको बताना है. ठीक है, क्योंकि विलियम कॉन्क्लेव ने रेस्टोरेशन कॉमेडी को किस तरह से दिखाएं. एंड आप रेस्टोरेशन कॉमेडी से वाकिफ है एज बिकॉज यू ऑल have done the paper CC7 where you have studied about Afra Benz the robot. So ये रेस्टोरेशन कॉमेडी के बारे में. मीराबेल कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मीराबेल. नाउ आई विल से सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. टाइटल की सिग्निफिकेंस कर लीजिएगा. कॉमेडी, किस तरह से कॉमेडी ऑफ विट और ह्यूमर को दिखाई गई है. ये रेस्टोरेशन कॉमेडी को किस तरह से अपने ड्रामा पे दिखाए हैं. ये सारी जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मिराबेल इम्पोर्टेंट है एंड द कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी इम्पोर्टेंट है. मैं और सारे क्वेश्चंस अपने इंस्टाग्राम पेज में आपको दे दूंगी, वहां से आप फॉलो कर लीजिएगा, वहां से आप देख लीजिएगा. ठीक है, और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप जरूर कमेंट करना मत भूलिएगा. जो भी आपकी क्वेरी है आप उसमें बोलिएगा, मैं रेडी हूँ
आपकी हर क्वेरी का आंसर्स देने के लिए। एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लाने वाली हूँ अपकमिंग वीडियो में, जिसमें मैं ये बताने वाली हूँ हाउ टू राइट अ गुड आंसर फॉर योर एसे टाइप। क्योंकि मैं देखी हूँ बहुत सारे बच्चे इसे शुरू कैसे करने एसे टाइप आंसर, वहीं पे वो भूल जाते हैं, या वो सोचते हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि मैम मैं किस तरह से अपना एसे टाइप आंसर को रेडी कर सकती हूँ। एसे टाइप आंसर रेडी करना कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है। इट्स वेरी इजी इफ यू नो द मेथड, इफ यू नो द राइट अप्रोच, you will automatically get a good marks in that. The only thing is you have to know how to write it. Okay, आज के लिए ये वीडियो इतना ही है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप जितना शेयर करोगे उतने ही उन्हें भी पता चलेंगे कि किस तरह से, उनके लिए भी उतनी ही हेल्पफुल होंगी कि किस तरह से एक आंसर्स लिखने हैं, किस तरह के पेपर्स यहाँ पे आ सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी query you are having, whatever kind of questions you raise in yourself, you can come to me and just clarify it. Okay, I will clarify all your doubts.